Hello learners, welcome back to the channel. In the last video we have discussed about single membrane cytoplasmic organelles. In this video we'll talk about double membrane cytoplasmic organelles. First of all we'll discuss about double membrane cytoplasmic organelles. There are different cytoplasmic organelles which have double membranes such as mitochondria and plastids. First of all we'll discuss about mitochondria. So what is a mitochondria? It is a double membrane cytoplasmic organelles. मीन्स ये वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है बट रेड ब्लड सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी एब्सेंट होता है. नाउ डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? This is the diagram of mitochondria. In this diagram, this is the outer membrane of mitochondria. This is inner membrane. The space between both these membrane is known as periplasmic space. The space present inside the inner membrane is known as matrix. These finger-like projection are known as crista. These stick-like diagrams are known as oxysome. This is ribosome and this is double strand circular DNA. So this is the structure of mitochondria. In this structure, let's discuss about outer membrane. The outer membrane is porous, continuous, permeable and soft. The inner membrane is rough, discontinuous, selective permeable and have finger-like projections called crista. Means आउटर लेयर तो सॉफ्ट होती है, परमिएबल होती है और कंटिन्यूअस होती है, बट जो इनर लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूअस है. इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टा बोलते हैं. लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली इन एनिमल सेल. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है एनिमल सेल के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वेयर एनर्जी इज फॉर्म्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी फॉर्म होता है. किसके थ्रू होता है? ऑक्सीडेशन के थ्रू, generated as a result of oxidation. Now moving further, what are the functions of mitochondria? Mitochondria के functions क्या होते हैं? Mitochondria help in energy formation in the form of ATP. It help in heat production. It generates oxidative radicals. Now moving further, let's discuss about plastids. What are plastids? Plastid is also a double membrane cytoplasmic organelle. Means ये भी double membrane cytoplasmic organelle है. It is present in plants and algae, absent in animal and fungus. On the basis of pigment and this function of the plastid, it can be classified into three parts. Means ऑन पिगमेंट के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे प्लास्टिड के तीन टाइप होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज प्लास्टिड्स? लेट्स डिस्कस. ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट इज प्लास्टिड इन विच पिगमेंट इज एब्सेंट. ये वो प्लास्टिड होता है जिसके अंदर पिगमेंट एब्सेंट होता है. पिगमेंट एब्सेंट मीन्स इट इज कलरलेस प्लास्टिड. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज फूड स्टोरेज. मीन्स ये फूड का स्टोरेज का काम करता है. अब ल्यूकोप्लास्ट के भी तीन टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. कौन सा फूड ये स्टोरेज कर रहे हैं? अमाइलोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मीन्स अगर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है then that is amyloplast. If it is the storage of protein then it is alleroplast.
and if it is the storage of fat, then it is oleoplast. Now moving further, what is chloroplast? Chloroplast is colorful pigment. It means इसके पास color होता है, but except chlorophyll means इसके पास green color नहीं होता, बाकी pigment होते हैं. Such as it is different pigment as in this different pigments are present. Example, carotenoid. Carotenoid gives red color in carrot. Function क्या होता है क्रोमोप्लास्ट का? It provide color except green, means green color के अलावा ये बाकी colors देता है. इन flowers, fruits, इन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही color होता है. Now in chloroplast pigment is present. कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. और फंक्शन क्या होता है इसका क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस. नाउ मूविंग फर्दर, वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. मीन्स नॉन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? देयर आर डिफरेंट नॉन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स सच एज राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम. हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है. राइबोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल. ये नॉन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है. अब राइबोसोम दो वर्ड से बना है, राइबो एंड जोम. राइबो मीन्स राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जोम मीन्स बॉडी. अब राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये दो पार्ट्स के अंदर होता है. इसके अंदर राइबोसोम में आरएनए एंड प्रोटीन. सो राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिकॉज मेन चीज क्या है राइबोसोम के अंदर? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन. और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बना है? आरएनए और प्रोटीन से. तो हम ये बोल सकते हैं कि आरएनए और प्रोटीन से ही राइबोसोम फॉर्म्ड हुआ है. अब राइबोसोम की क्या होती है? दो सब यूनिट होती है. एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, एक होती है लार्जर सब यूनिट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है. स्मॉलर सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और लार्जर सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है. स्मॉलर सब यूनिट की स्मॉल साइज होती है और लार्जर सब यूनिट की लार्जर साइज होती है. इन दिस डायग्राम, this is small subunit and this is large subunit. In the cytoplasma, magnesium ion is present. In the presence of magnesium ion, these smaller subunit and larger subunit combine and form ribosome. इस टाइप से राइबोसोम फॉर्म होता है. अब टाइप क्या होते हैं राइबोसोम के? राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम. 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस. सो वी कैन से राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स डिस्कस अबाउट centrioles. What are centrioles? Centrioles क्या होते हैं? They are also non-membrane cytoplasmic organelles present in animals and absent in plants. Means ये non-membranic cytoplasmic organelles है जो animals के अंदर present होते हैं और plants के अंदर absent होते हैं. ये कहाँ present होते हैं? ये nuclear membrane के पास present होते हैं. These are present toward the nuclear membrane. Centrioles are a cylindrical organelle made of microtubule triplets. अब इनका अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0 का अरेंजमेंट होता है. सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज टू फॉर्म द स्पिंडल फाइबर दैट हेल्प इन सेल डिवीजन. ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सेल डिवीजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ what is cilia and flagella? Cilia flagella क्या होता है? These are two different organ but इनका almost same function होता है.
फ्लैजिला किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, बट सीलिया इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला? सीलिया स्मॉल होती है साइज के अंदर और फ्लैजिला लार्ज साइज के अंदर प्रेजेंट होता है। सीलिया नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट इज वेरी लार्ज, मीन्स सीलिया जब भी प्रेजेंट होगी तो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है, और फ्लैजिला जनरली 1 to 4 प्रेजेंट होता है। सीलिया होल सरफेस पे होती है सेल के, और फ्लैजिला एक स्पेसिफिक साइट पे प्रेजेंट होता है। Cilia help in locomotion, feeding, excretion and secretion, while flagella help in locomotion. Thanks for watching.